students, this is the topic of today's class where ecosystem we are going to learn. It is seen that it is any unit where there is a interaction between biotic and abiotic factors. And when there is something exchanged in between them, some exchange of material, if it is taking place in between them, we call it as a ecosystem. It is the interaction between abiotic and biotic things. There should be some kind of exchange of material in between biotic and abiotic factors. So that is called as the ecosystem. Students, this term was first of all explained by Tansley in 1935. He has given this concept of ecosystem. And he has defined it as it is a system resulting from integration of all the living and non-living factors of the environment. He has defined crudely that it is the integration of living and non-living factors of the environment. Now, what do you understand by this definition? For example, in nature, living organisms, for example, the human beings, plants, animals, different kind of microorganisms, we consider them as the living organisms. Now, what is a non-living thing present in the nature? Non-living thing is like temperature, water, sunlight, all these come under the non-living things. So is there any interaction of living and non-living things? Suppose when we are talking about human beings in our day-to-day life, we come in interaction with water, light, temperature, humidity, earth, oxygen, everything we come into contact with. So actually, this interaction can be considered as a ecosystem. In the nature, ecosystem is considered as functional unit. So ecosystem is called as a small functional unit of nature. Students, if you take just a drop of water, that will also act as an ecosystem. You will think that how a drop of water will be an ecosystem. If you separate a drop of water and you study on living things present in that water droplet, non-living things what are present in that drop of water, that will become a study. And we can consider a drop of water as a ecosystem. If it is very small, we call it as a microsystem. We call it as a microsystem. Because in the drop of water also, there is an interaction between biotic and non-biotic things. For example, in that small drop, living things may be present like bacteria, fungal spores, etc. Those will become biotic things. And what about the abiotic things? In that small drop of water, of course, there will be water, moisture, oxygen, carbon dioxide, nitrogen, some amino acids, some organic things may be present. So definitely the drop of water is also an ecosystem, or a pond may be an ecosystem, or just take into consideration a particular forest area. That forest area may act as an ecosystem. Or suppose if you are talking about any desert, so that will become a desert ecosystem. And suppose if I am talking about some grassland, so there, of course, in the grassland also there will be interaction between biotic and abiotic things. Then it will be called as the ecosystem. So here, a smallest ecosystem may be a drop of water, or a largest ecosystem may be an ocean, for example. So this has been the introduction given about what is meant by this ecosystem. Students, coming to the next topic, what is the or what are the types of ecosystem? The ecosystems are divided into number one, artificial ecosystem, and number two, natural ecosystem. Let us talk about, is it possible to create an artificial ecosystem? Artificial ecosystem यानी man-made ecosystem. For example,
कोई क्रॉपलैंड है या मेज का कल्टीवेशन है, व्हीट कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन एक पर्टिकुलर फील्ड में, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, तो यू कैन कॉल इट एज ए मैन मेड और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। या ऑर्किड्स का कहीं कल्टीवेशन कर रहे हैं, कोई एक्वेरिया बना रहा है, उसको भी हम इकोसिस्टम कह सकते हैं। सो ये इज इट ए नेचुरल वन, इज इट नॉट नेचुरल, इट इज अ आर्टिफिशियल वन। सेकेंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम यानी जो इंसानों ने नहीं बनाया, ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाया, नेचुरली बना है अर्थ के ऊपर। सो दे ऑपरेट देमसेल्फ अंडर नेचुरल कंडीशंस विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। ओके, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम्स है। एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स द इकोसिस्टम विच ऑपरेट्स इन वाटर। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स द इकोसिस्टम विच ऑपरेट्स ऑन लैंड। आया समझ में? नेचुरल इकोसिस्टम के कितने प्रकार है? एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर एक्वेटिक सिस्टम हो सकता है या मराइन वाटर एक्वेटिक सिस्टम हो सकता है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड इकोसिस्टम या रिवर इकोसिस्टम, जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है, इट विल एक्ट एज एन इकोसिस्टम। सेकेंड टाइप ऑफ एक्वेटिक इज मराइन इकोसिस्टम, जो ईस्चुराइन एरियाज है या ओशियन का इकोसिस्टम है, उसको हम मराइन इकोसिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, I am talking about type of ecosystems. Ecosystems are divided into two groups. One is artificial, other one is natural. Natural ecosystem is again divided into number one, that was the aquatic ecosystem and terrestrial ecosystem. Now, what is meant by terrestrial? I told you that which is related to land, which is related to earth. For example, कोई grassland ecosystem हो सकता है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट का आप स्टडी कर रहे हो या पोलर रीजन्स का आप स्टडी कर रहे हो, तो वह भी एक इकोसिस्टम बन सकता है। पोलर इकोसिस्टम इट इज कॉल्ड एज। नाउ आफ्टर लर्निंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, इंट्रोडक्शन अबाउट इकोसिस्टम और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, द नेक्स्ट पॉइंट विच इज इन योर सिलेबस इज स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये हम देखेंगे। In the any ecosystem, two major components are present. First is abiotic component and second is biotic component. Abiotic components which are present in the ecosystem are inorganic things, organic things, climatic factors, etc. Inorganic things, organic things, climatic factors, they act as the abiotic components of ecosystem. चाहे वो कोई भी इकोसिस्टम हो, पॉन्ड हो, ओशियन का हो, लैंड का हो या ग्रासलैंड हो या कोई एग्रीकल्चर फील्ड हो, कोई भी इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं। पहला अबायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स है, क्लाइमेट है, ये सब आएगा अबायोटिक में। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं लिविंग थिंग्स। Biotic components are again divided into autotrophs and heterotrophs, यानी living things जो होते हैं इकोसिस्टम में वह ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं और डीकम्पोजर्स भी हो सकते हैं। ये तीनों तरह के ऑर्गेनिजम्स बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स यानी they can synthesize their own food material, we call them as producers. Heterotrophs यानी they cannot synthesize their own food material and they have to depend on others. Okay, these are called as heterotrophs. Students, we are talking about biotic component. Biotic component के तीन प्रकार है, producer जिसको हम कहते हैं autotroph, second heterotroph और third decomposer. Heterotrophs are again divided into primary consumer, secondary consumer, टर्शरी कंज्यूमर और कुछ पैरासाइट या सैप्रोफाइट जिसको हम कहते हैं। सो डीकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स आर आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट। स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अबायोटिक कंपोनेंट किसी इकोसिस्टम में क्या क्या हो सकती है। ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग। सो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं किसी इकोसिस्टम में?
जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स, आयरन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यह सब क्या है, यह सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं किसी भी इकोसिस्टम का, चाहे फॉरेस्ट हो या छोटा सा पॉन्ड हो या एक ड्रॉप ऑफ वाटर हो, उसमें ये सभी चीजें होती है। ओके, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स है, कुछ रॉ मटेरियल्स है, इनऑर्गेनिक थिंग्स में आते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अबायोटिक कंपोनेंट्स में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि डेड एनिमल या डेड प्लांट्स से आते हैं, या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स यानी हाफ डिकम्पोज्ड थिंग्स भी इसमें होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्रूड फॉर्म में, लिपिड्स, प्रोटीन्स क्रूड फॉर्म में होते हैं। ह्यूमस जो हम कहते हैं ना ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस या यूरिया, दिस ऑल्सो आर इंक्लूडेड इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Students, I was talking about which one? I was talking about the what is called as the abiotic components. उसमें हम inorganic कौन से, organic कौन से और climatic factors क्या क्या है वो हम देख रहे हैं. So climatic factors are जैसे कि लाइट, जो हमारे सराउंडिंग में लाइट होती है, जो टेम्परेचर होता है, या सनलाइट की जो एनर्जी होती है, ओके, या हवा में जो मॉइस्चर होता है, ये सब चीजें जो है दे आर क्लाइमेटिक फैक्टर्स. सो स्टूडेंट्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेटिक फैक्टर्स. सो किसी भी इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो उसमें इनऑर्गेनिक थिंग्स होते हैं, ऑर्गेनिक थिंग्स होते हैं और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं. Now talking about organic components. Organic components कौन से, मैंने कहा ये सब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको कहा था. The second component of ecosystem is biotic component, जो living things होते हैं. For example, producers. Producers ecosystem में कौन से हैं? जैसे कि green plants. The living things which can synthesize their own food material, they are called as producers, यानी ऑटोट्रॉफ्स. सो ग्रीन प्लांट्स है. एक्चुअली ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करना है वाटर और सनलाइट की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से फोटोसिंथेसाइज करके फूड बनाते हैं. ओके, सो मैन्युफैक्चर ऑफ फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से? जैसे मैंने कहा, पानी की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, सनलाइट की सहायता से क्या करते हैं? फूड बनाते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स एंड वी कॉल देम एज ऑटोट्रॉफ्स. बायोटिक कंपोनेंट्स में पहला मैंने आपको बताया प्रोड्यूसर के बारे में. अब दूसरी चीज कौन सी? इट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स आर ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम which cannot synthesize their own food material. ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट में पहला ग्रुप ऑटोट्रॉप वाला जो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, दूसरा ग्रुप कंज्यूमर जो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते, इनको हम कहते हैं कंज्यूमर. तो जो कंज्यूमर्स होते हैं इकोसिस्टम में वह 4 प्रकार के देखे गए हैं. मेनली 3 प्रकार के हैं, लेकिन चौथा प्रकार भी मालूम होना चाहिए. पहला है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर और तीसरा टर्शियरी, चौथा सैप्रोस. कंज्यूमर्स में जैसे मैंने बताया, प्राइमरी कंज्यूमर यानी क्या? स्टूडेंट्स, प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोरस एनिमल्स जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं, यानी ऐसे एनिमल जो ग्रीन लीव्स और प्लांट्स को खाते हैं. और ग्रीन लीव्स या प्लांट्स यानी क्या? प्रोड्यूसर. सो ऐसे एनिमल्स जो ग्रीनरी को खाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, और इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स. उनको खाने वाले हर्बीवोर्स, उनको बोलेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स. जैसे कि छोटे छोटे इंसेक्ट है, या रोडेंट्स है, रैबिट्स है, डीर, काऊ, बफेलो, गोट, एलिफेंट वगैरह, यह सब ग्रीन चीजें खाते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं. सो उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं. स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट में सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर यानी ऐसे कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं एज ए फूड. यानी प्राइमरी कंज्यूमर यानी एनिमल्स हुए, लिविंग थिंग्स, एनिमल्स हुए. तो एनिमल्स को खाने वाले यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओके, इनको हम कहते हैं कार्निवोर्स. स्टूडेंट्स, ऐसे एनिमल जो फ्लैश खाते हैं
ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कहते हैं। तो ये एमसीक्यू में किसी भी तरह का क्वेश्चन आया तो आप छुड़ा सकना चाहिए, आपको छुड़ाना आना चाहिए। प्राइमरी कंज्यूमर यानी हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर्स, याद रखो। सो कार्निवोर्स यानी ऐसे एनिमल जो स्ट्रिक्टली फ्लैश ईट करते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में ऑमनिवोर्स भी होते हैं। ऑमनिवोर्स यानी क्या? ऑमनिवोर्स यानी ऐसे एनिमल जो हर्बीवोर्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, यानी एनिमल ईटिंग एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड एज ऑमनिवोर्स। तो ये एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका मीनिंग पूछते हैं, याद रखो। सो दीज आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दे डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर फूड। फूड के लिए प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि कैट्स, डॉग्स, snakes, sparrow, crow, fox, etc. These are examples of secondary consumers. Students, let us talk about third type of consumer. Third type of consumers ecosystem में जो होते हैं वह top carnivores होते हैं। Top carnivores यानी lion, tiger, hawks, vulture, etc. etc. फिर टर्शरी कंज्यूमर्स कौन से? टर्शरी कंज्यूमर यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, यानी कार्निवोर्स को, ऑमनिवोर्स को और हर्बीवोर्स को भी खाते हैं। सो दे ईट फूड। व्हाट इज देयर फूड? देयर फूड इज सेकेंडरी कंज्यूमर एज वेल एज समटाइम्स हर्बीवोर्स आल्सो। सो फॉर एग्जांपल लायंस, टाइगर्स, हॉक्स, वल्चर एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए इकोसिस्टम में टर्शरी कंज्यूमर को टॉप कार्निवोर कहा गया है। टॉप कार्निवोर ऐसे कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। अब हम लास्ट टाइप के बारे में देखेंगे, सैप्रोप्स या पैरासाइट्स यानी क्या। नेचर में कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट यानी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो होने के बाद वहां का टिश्यू जो है उसे कंज्यूम करते हैं, वहां के टिश्यू को डिस्टर्ब करते हैं और वहां के टिश्यू को एज ए फूड खा लेते हैं। ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कहते हैं। तो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, पैरासाइट यानी क्या। ठीक है, पैरासाइट यानी विच कंज्यूम टिश्यूज विच ग्रो ऑन लिविंग थिंग्स। और उसके बाद सैप्रोब यानी क्या, लेट मी टेल यू। सैप्रोब का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड रिमेन्स या डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ग्रो होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो होते हैं, जैसे कि फंगस वगैरह। ओके, सो इस तरह के कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। डीकम्पोजर्स यानी ऐसे organisms which attack dead remains of producers and consumers. एंड जो भी प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, जब यह डेथ हो जाता है इनका, तो उनको डिग्रेड करने का काम, डिकम्पोज करने का काम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। इनको हम क्या कहें? डीकम्पोजर्स ऐसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज टू डिग्रेड। उनका काम होता है डिग्रेड करना, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करना उनका काम होता है। सो दिस इज द लास्ट ग्रुप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट स्टूडेंट्स। डिग्रेडेशन करना और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल में कन्वर्ट करना, ये काम होता है डिकम्पोजर्स का। ओके, सो ये मैंने आपको कौन सा पॉइंट समझाया? अभी तक मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ये पॉइंट मैंने आपको समझाया है स्टूडेंट्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम?